Hello students, I am Nidhi and today we will discuss from Hornbill book from class 11th our lesson number 3 Discovering Tut, the sagas continue. It is written by A.R. Williams. Before starting our lesson, let's discuss about the brief introduction. Hello students, I am Nidhi and today we will discuss our lesson 3rd Discovering Tut, the saga continues from the book Hornbill of class 11th. It is written by A.R. Williams. Before starting a lesson, I will give you a brief introduction about the lesson, that what is lesson is about. It was about a king of Egypt whose name was Tut. He was the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was just a teenager when he died, and after his death, according to the Egyptian custom, his body was preserved as a mummy. He was buried in a pyramid in a coffin made of gold containing many other precious things. His tomb was discovered in 1922 by an archaeologist. In 2005, a CT scan was done on his mummy, and in this chapter, the writer describes the result of that investigation. Let's start our lesson. He was just a teenager when he died. वो सिर्फ एक teenager ही था जब वो मरा. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was led to rest laden with gold and eventually forgotten. उसको गोल्ड के साथ दफना दिया गया था क्योंकि वो लास्ट हायर था एक इजिप्ट का, और बाद में उसको भुला दिया गया. सिंस द डिस्कवरी इज of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. 1922 में उसके टॉम की, उसकी कब्र की जो है वो डिस्कवरी हुई, और मॉडर्न वर्ल्ड जो है ये जानना चाहता था कि भाई उसके साथ क्या हुआ है, और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि वो खुद अपनी नेचुरल डेथ जो है वो नहीं मरा, उसका शायद मर्डर हुआ है. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides a precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि 80 सालों में पहली बार जो है उसकी टॉम को अब के साथ जो है वर्क किया जाएगा. ये पहली बार होगा कि एक इजिप्ट के राजा जो टट जो हैं उनको सिटी स्कैन कराया जाएगा उनकी मम्मी का, और उसके लाइफ और डेथ के बारे में नए नए जो हैं क्लूज़ हमें मिलेंगे, और जो कि फोरेंसिक वैज्ञानिकों के जो आंकड़े हैं उनको एक्यूरेटली बताएंगे कि क्या कारण रहे हैं इस बॉयश फराहो के. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जब जैसे इनकी जो टट की जो है वहाँ से रेस्टिंग प्लेस जहाँ पर ये रेस्ट कर रहा था, यानी टॉम जो इसकी कब्र थी, वहाँ से जैसे ही इसकी सिमेट्री में से जो निकाली गई, जिस सिमेट्री को किस नाम से जाना जाता था, वैली ऑफ द किंग्स, तो यहाँ से निकाली गई. बहुत ज़्यादा प्रचंड रूप में हवाओं ने जो है वो चलना शुरू कर दिया था, मानो ऐसा लग रहा था जिससे धूल वाले राक्षस जो हैं वो उड़ना शुरू हो गए हों. डार्क बिलेड क्लाउड हैड स्कर्ट across the desert sky all day and now were veiling the stars in the cascade grey. मतलब दिन में भी पूरा दिन जो है पूरा का पूरा धूल भरा जो है स्काई रहा, और रात में भी जो है
पूरा का पूरा एकदम अजीब सा, जब तारों की छाँव में वो सारी चीज़ें होने लगी तब भी वो सारी चीज़ें जो है कास्केट यानी शव पेटिका जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने उसको छिपा लिया था। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005 और ये कब की बात थी? 6 बजे 5 जनवरी 2005 को द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लिडेड हैड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर ब्रॉट हेयर टू बी प्रॉप द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो। जो लगभग 3300 वर्ष पहले मर चुका था, उसके रहस्यों के जानने के बारे में उसके मम्मी का चमकीला सर जो है वो पहली बार सिटी स्कैनर में से निकाला जाने वाला था। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन्स of tourists from around the world has descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. अब उन्होंने कहा कि सारी दोपहर बाद संसार के ज़्यादातर जितने भी टूरिस्ट लोग थे वे सारे के सारे लाइन बनाकर एक चट्टान को काट कर बनाए गए मकबरे के नीचे उतर कर उसको देखने के लिए आए थे, जब उसकी टॉम जो है वो निकाली जा रही थी। लगभग 26 फीट नीचे जो है भूमि के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें दफनाई हुई थी। They gazed at the mural on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. तो उन्होंने क्या बताया कि जब उन्होंने कब्र की दीवारों को देखा तो उन पर जो जितनी भी चित्रकारी हो रखी थी उनको बड़े ध्यान से देखा और टुट के जो चमकदार चेहरे को देखा, जो कि उस मम्मी के आकार के कफन के ढक्कन के सबसे मेन जो विशेषता थी वो वही थी, यानी जो बिल्कुल उसका कॉफिन का जो आकार जो था ना मुंह का, वो बिल्कुल मम्मी के आकार का ही था। Some visitors read from guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut ultimately death in his last teens or wondering a shiver if the pharaoh's curse, death और misfortune falling upon those who disturbed him was really true. और कईयों ने जो है कुछ जो विजिटर्स आए हुए थे उन्होंने जो है गाइड बुक को पढ़ा और दूसरे जो है वो चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि इसकी जो अकाल मृत्यु थी इस टीनेजर की, वो ये सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि भाई जो इस यहाँ का मतलब इजिप्ट का जो एक वो था महाराजा जो था, आखिरी महाराजा, उसका कोई श्राप जो है, दुर्भाग्य या मौत का श्राप जो है वो कहीं हम लोगों को ना लग जाए। क्या ये सारी चीज़ें वास्तव में सही थी, हम इसी का पता लगाएंगे। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड। एंड ये कार्टर जो है ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उसका सिटी स्कैन किया था। मम्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी अवस्था में पाई गई थी और ये ज़ाही हवास ने कहा था। ठीक, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर लॉन्ग फर्स्ट लुक। और उसने जैसे ही ये सारी की सारी उसने बातें बताई थी, जो वो कहाँ पर था, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्शियन सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विजिटी ने कहा कि जो कुछ भी कार्टर ने 1920 में किया उसके कारण मम्मी की पूरी बुरी हालत में थी। अब क्या है, कार्टर हॉवर्ड कार्टर दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टुट टॉम्स आफ्टर ईयर्स ऑफ फर्टाइल सर्चिंग। जो उसने ये जो सारी चीज़ें करी थी ना, कितने सारे असफल उसके प्रयास रहे थे, जब आखिरकार उसको ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम था हॉवर्ड कार्टर, उसने 1922 में इस मम्मी को डिस्कवर किया था। इट कंटेन थ्रू हेजिटली रैंसैक्ड इन antiquity were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become the part of the Pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold and their eternal brilliance meant to guarantee restoration caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. और जब ये मम्मी मिली तो उसके सामने पता चला, हम लोगों को ये पता चला था कि इसके अंदर की जितनी भी वस्तुएं जो इस
टीनेजर के साथ जो दफनाई गई थी उसको शायद जल्दबाजी में लूटा गया है। पर आश्चर्य की बात थी कि वो अपने आप में पूरी की पूरी थी। वो राजसी वस्तुएं आज तक भी ऐसी की ऐसी ही मिली थी, जो उस समय की वस्तुओं का संग्रह जो थी वो आज भी उसी में ही मतलब दफन थी, और वे फ़राओं की जितनी भी लीजेंड हुआ करती थी उनका एक हिस्सा बन गई थी। खोज के समय एक सनसनी का एक कारण आया कि सोने से बना हुआ जो एक पिलर था, करने वाली हस्तकृतियाँ थी, उस पर जो है हाथ से लिखी हुई बहुत सारी कलाकारियाँ थी। उन्हें हमेशा रहने वाली चमक जो है वो पुनर्जीवन की एक गारंटी थी, और आज भी वो सबका ध्यान आकर्षित करती है। यानी मम्मी पर इतनी अच्छी तरीके से चित्रकारी की गई थी कि वो आज भी उनकी चमक जो है वो ऐसे के ऐसे ही थी। बट Tut was also buried with everyday things he would wanted in the afterlife: board games, a bronze razor, लिनन अंडरगारमेंट्स, केस ऑफ फूड्स एंड वाइन। और उसको जो है उसके साथ क्या क्या चीज़ें दफनाई गई थी जब उसकी मौत हुई थी। उसके जीवन में जो जो चीज़ें उसको ज़रूरत पड़ेंगी, जैसे शतरंज और पासा के खेलने वाली वो चीज़ें, एक कांसे का उस तरह, एक उसके जो अंडरगारमेंट्स थे लिनन, जो एक स्टफ़ होता है उसके, भोजन और वाइन के डिब्बे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराओ funerary treasure, Carter began investigating his 3 nested coffins. फ़राओं के दफन किए गए खजानों को महीनों तक ध्यानपूर्वक उसने जांच करी थी। कार्टर ने उसने 3 कवचों के में जो है उसको 3 कवच के अंदर जो है उस ताबूत को जांचनी शुरू करी थी। मतलब वो पूरी की पूरी उसकी 3 लेयर बनाई गई थी उसको दफनाने से पहले उसकी कॉफिन की। ऑन ओपनिंग द फर्स्ट, जब उसने पहली वाली को खोला, ही फाउंड अ श्रॉड अडर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लिव्स। जब उसने पहले वाले कफन को खोला तो उसमें विलो और जैतून के पत्तों की एक माला मिली। वाइल्ड सिरली, जंगली अजवाइन, लोटस पिटल्स, लोटस की पत्तियाँ, कॉर्नफ्लॉर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल, जो हमें ये बता रहे थे, क्योंकि ये जो लोटस वगैरह जो होते हैं और ये विलो वगैरह की जो लीव्स होती हैं ये मार्च और अप्रैल के महीने में ही होती हैं। तो हम लोगों को यहाँ से ये पता लगता है कि भाई ये मार्च और अप्रैल के महीने में ही मरा था। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी दो ही रेन इनटू अ ट्रबल, और अंत में जब वो मम्मी तक पहुंचा तो वो कठिनाई में पड़ गया था। क्यों? द रिचुअल रीजन्स हैड हार्डन सीमेंटिंग टुट to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. कार्टर ने जो है ये सबसे लास्ट में ये लिखा भी था, क्योंकि जब वो बिल्कुल एंड में पहुंचा था ना उस कॉफिन की लेयर की, तो उसने अपने जितना भी उसने अभी तक जो भी कुछ सर्च किया था उसमें एक चिकना पदार्थ जो है वो कठोर हो चुका था। तो जो उसको दफनाने के टाइम पर एक चिकना सा जो भी पदार्थ उन्होंने लगाया होगा, लेप जिस चीज़ का भी किया गया होगा, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त पड़ गया था, जिसने टुट को उसके ठोस सोने के ताबूत से तली में सीमेंटेड की तरह जमा दिया था। जैसे सीमेंट जम जाती है कहीं पर, सीमेंट की तरह जमा दिया था। किसी भी मात्रा में लगाया गया उचित बल उसे अलग नहीं कर सकता था। कार्टर ने बाद में लिखा था क्या किया जाना था या क्या किया जाना चाहिए था। He set mummy outside. He set mummy outside in blazing sunshine that heated to 149 degrees Fahrenheit. Nothing bugged. He reported with the scientific day attachment that the consolidated material had to be chelaced away from the beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain. उसने मिस्र में जितनी भी ये सारी चीज़ें थी ना, उसने मतलब दक्षिण भाग में और उसने सूर्य की किरणों में इतने ज़्यादा उसमें रख दिया था कि वहाँ पर जो है 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको गर्म किया गया। मम्मी को बाहर तपती हुई धूप में रखा गया था इतना ढीला करने के लिए, ताकि वो सीमेंट जो है वो
कुछ पिघल जाए, लेकिन तब भी उसमें से कुछ नहीं सरका। तो जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना अपना व्यू दिया कि इससे पहले कि राजा के अवशेषों को उठाना असंभव हो जाए, जमे हुए पदार्थ उसके अंग और धड़ के नीचे से छेनी मारकर अलग करने पड़े थे। That's all for today's lesson. Now we will discuss the remaining portion of the lesson in the next video. Thank you for watching the video.